Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are going through the poem You Start Dying Slowly. This poem is composed by the Chilean poet Pablo Neruda. This poem is free verse, it has no rhyming words, no rhyming scheme. The poem You Start Dying Slowly means the things that are leading us to a slow death. The poem inspires us, motivates us to do much in our life. In this regard, I make you listen the meaning of hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, what he said? Listen carefully. The very important hadith I am going to listen you. The one whose 2 days are same. Listen. The one whose 2 days are same is in loss or deficit. That means every day of ours should be better than the previous day in terms of knowledge and practice. Day by day we must improve ourselves. Our 2 days should not be same. Our life should not be victim of stagnation. In this regard, I am going to listen you the stanza of Janab Khalil Faraz Sahab. He said in his stanza, he was a very famous poet of Karan Jalad. हयात जय दे मुसलसल का नाम है फरक. हयात जय दे मुसलसल का नाम है फरक. जमूद से भी कई मुकद्दर बदलता है. That means life is the name of constant struggle. We cannot change our destiny with stagnation. My beloved learners, we need to carry out a lot of activities in our life. We must keep ourselves dynamic and modalities. So, what are the things that are leading us to a slow death? We will come to know into the poem so that we could avoid them. Let's learn. After the brief introduction, we are going to solve warming up activities. You start dying slowly. Let's solve the chit-chat activities. Assuming A, B, C, D as speakers, ask the assigned questions in your group and discuss. फर्ज करो कि ABCD जो है वो स्पीकर है और वो सवालात पूछते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं. ए आस्क द क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा. आई विल नॉट पास इन एग्ज़ाम. माई पेरेंट्स विल बी एंग्री. देयर आर मेनी रीजन्स यू कैन गिव. वी आस्क द क्वेश्चन, if you wake up late on a working day, you will not be able to perform my work in time. If you do not exercise regularly, what will happen? अगर आप exercise नहीं करोगे तो क्या होगा. I will become the sluggish and lazy. मैं आदी हो जाऊंगा. If you eat too much of junk food, what will happen? अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो क्या होगा. It will increase obesity and danger of disease like cancer, kidney and stomach. If you do not participate in school activities, games, अगर आप गेम्स में हिस्सा नहीं लोगे या सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लोगे तो क्या होगा. I will not be able to gather courage and to show my potentiality. If you ignore a friend in need, it will be a great discourtesy that is against my religion. तो ये थी activity chit chat. Now second things we are going to solve. Things I can do in my life. काम जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ. फॉर माई नेशन, अपने मुल्क के लिए. फॉर माई फैमिली, ख़ानदान के लिए. फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के लिए. फॉर ओल्ड पीपल, बुज़ुर्ग लोगों के लिए. फॉर द नीडी, ज़रूरतमंदों के लिए. फॉर माई सेल्फ, और ख़ुद के लिए. तो कौन कौन से काम कर सकता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में इन सब के लिए. तो चलिए देखते हैं पहले. फॉर माई नेशन, तो पहला तो दिया गया है कीप माई लोकेलिटी क्लीन. मैं सफाई का ख्याल रखूँगा. दूसरा हम काम कर सकते हैं इरिडिकेट द ब्राइब्स, रिश्वत को ख़त्म कर सकते हैं देश के लिए. टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट के इसमें हिस्सा ले सकते हैं. डोनेट द ब्लड, और खून को डोनेट कर सकते हैं. फॉर माई फैमिली, ख़ानदान के लिए क्या कर सकते हैं हम. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ वक्त गुजारना.
ट्राई टू मेक देम हैप्पी, उन्हें खुश रखना। अर्न मनी फॉर माई फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए पैसे कमाना। हैव अ पैशन ऑफ लव फॉर देम, और उनके लिए मोहब्बत का जज्बा रखना। फॉर माई फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्प देम इन देयर नीड, उनकी ज़रूरत में मदद कर सकते हैं। वेट फॉर देम, उनका इंतज़ार कर सकते हैं। लीड देम इन अ गुड वे, सही रास्ते पर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। हेल्प देम इन अ प्रॉब्लम, और मुश्किलात में उनकी मदद कर सकते हैं। फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है सिट विद देम एंड टॉक टू देम, उनसे उनके पास बैठना और उनके साथ बातें करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। रेस्पेक्ट देम, उनकी इज्जत करना। प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ देम, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। और कीप देम हैप्पी, और उन्हें खुश रखना। फॉर द नीडी वी कैन पे ज़कात और सदका, हम उन्हें ज़कात और सदका अदा कर सकते हैं। प्रोवाइड द नेसेसरी थिंग्स व्हाट दे नीड, उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है उन्हें मुहैया कर सकते हैं। इनवाइट देम इन आवर हैप्पी ओकेशन, उन्हें अपनी खुशी के मौके पर उन्हें दावत दे सकते हैं। फॉर माई सेल्फ, और ख़ुद के लिए क्या कर सकते हैं? तो जब आप खुद के लिए करोगे तभी इन सब के लिए कर सकोगे। नेशन के लिए, फैमिली के लिए, दोस्त के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए। ये उसी वक्त कर सकोगे जब आप खुद के लिए पहले कर चुके होंगे। फॉर माई सेल्फ स्टडी हार्ड, क्योंकि दरख्त जब तक बड़ा नहीं होता, सायादार नहीं होता, तब तक फल नहीं देता। इसलिए अपने आप को बड़े करो, फलदार बनाओ, फिर सारी मखलूक आपसे फ़ायदा उठाएंगे। फॉर माई सेल्फ स्टडी हार्ड, टेक एक्सरसाइज, तंदुरुस्ती हज़ार नियामतें। हैव गोल टू अचीव इट, और मकसद रखते हम उसे हासिल करने के लिए। एंड प्रे टू अल्लाह, और अल्लाह से इबादत करते हैं। तो ये थे काम जो हम कर सकते हैं ज़िंदगी में। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड राइट अ पैराग्राफ, इस वेब को मुकम्मल करना है और उसमें से एक पर पैराग्राफ लिखना है। एक पॉइंट दिया गया है माई विश, मेरी ख्वाहिश है ट्रैवलिंग इन स्पेस, खला में सफ़र करना। दूसरी हम ये देते हैं टू बिकम अ गुड लीडर ऑफ माई नेशन। तीसरा देते हैं टू बिकम अ गुड ओरेटर, एक अच्छा मुकर्रिर बनना। टू विज़िट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजायबात का सफ़र करना। तो हम इस पर एक पैराग्राफ लिखते हैं, आई वांट टू विज़िट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पर एक पैराग्राफ दे रहा हूँ मैं, और इन तमाम चीज़ों को आपको लिखना है और फतेह ग्रुप में पोस्ट करना है। ये पैराग्राफ दिया है मैंने आपको एक, आई वांट टू विज़िट द 7 वंडर्स, 7 अजायबात का सफ़र करना चाहता हूँ मैं। तो इसको लिख लीजिए और तमाम एक्टिविटीज़ को फतेह ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कीजिए। चलिए चलते नज़म को समझने की तरफ। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, रिटन बाय पेब्लो नेरुडा। लेट्स नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लीडिंग अस टू अ स्लो डेथ सो दैट वी कुड अवॉइड देम टू लिव अ गुड लाइफ। देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ें या काम ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम जीते हुए भी मर मर के जी रहे हैं। बल्कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ज़िंदगी को ज़िंदगी के जैसे जियो, क्योंकि ये एक ही बार मिलती है मिंजानी बल्ला की। इसको मोहतरिक जीना चाहिए, ना कि अहदीपन के साथ। चलो कौन कौन से काम हैं जो करना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, कौन से काम ज़िंदगी को ज़िंदा रखते हैं और कौन से काम ज़िंदा होते भी हम मुर्दा कहलाते हैं, कौन से कामों से हम ज़िंदा होते भी मुर्दा कहलाते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तुम धीरे धीरे मर रहे हो। लेट्स लर्न, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड। यहाँ शायर ने 2 बहुत अच्छे लफ्ज़ों से शुरुआत की है पोएम की, जिसकी वजह से एक इंसान ज़िंदगी को ज़िंदा रखता है और अच्छी ज़िंदगी जीता है। एक सफ़र करना और एक पढ़ना।
अगर आप सफ़र नहीं करते हो तो दुनिया के अजायबात से वाकिफ़ नहीं होते हो, दुनिया की खूबसूरती से वाकिफ़ नहीं होते हो, दुनिया की तकलीफ़ से वाकिफ़ नहीं होते हो। लेट्स लर्न इन द पोएम। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप सफ़र नहीं करते हो और अगर आप पढ़ते नहीं हो, दो खूबसूरत अल्फाज से शुरू किए हैं पोएम को, एक सफ़र करना और एक पढ़ना। सफ़र करने से दुनिया की अजायबात से हमें वाक़फ़ियत मिलती है, दुनिया की खूबसूरती से वाक़फ़ियत मिलती है। दूसरा ये है कि सफ़र से हमें मुसीबतें ज़ब्त करने का एक मादा मिलता है। सफ़र से सब्र पैदा होता है ज़िंदगी में, और ये दोनों भी मोहतरिक काम है, ज़िंदगी को मोहतरिक रखते हैं। मतलब हमने दुनिया को देखना चाहिए, अलग अलग मुकामात से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहिए कि दुनिया को कितनी खूबसूरत पैदा किया अल्लाह ताला ने। इस ज़बान में बहुत सारी तकालीफ आती है, वो सब उस पर सब्र करना चाहिए। और इफ़ यू डू नॉट रीड, पढ़ना तो इंसान की फितरत में है, उस पर फ़र्ज़ है। पढ़ने के बगैर वो सफ़र नहीं कर सकता, पढ़ाई के बगैर, स्टडी के बगैर सफ़र नहीं कर सकता। तो ये पढ़ना ही जो है इंसान के लिए अहम फ़र्ज़ होता है, जिसके बाद उसके बाद सेकंड मरहला उसका अमल करना होता है। तो अगर आप सफ़र नहीं कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे मर रहे हो। मतलब मरने जैसी ज़िंदगी, यानी आपकी ज़िंदगी बेकार है। योर लाइफ इज़ वर्स्ट इफ़ यू डू नॉट स्टडी, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल। दूसरा ये है कि इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी दस्तक देती रहती है। देखो, आने वाले ख़तरात से और आने वाली अपॉर्चुनिटी से वाक़फ़ियत कराती रहती है। एक ख़तरा से भी वाक़फ़ियत कराती रहती है और एक अपॉर्चुनिटी से भी वाक़फ़ियत कराती रहती है। तो आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप अचीव कर सकते हो या नहीं, या आने वाले ख़तरात से आप बच सकते हो कि नहीं। अगर आप ज़िंदगी की आवाज़ को नहीं सुनते हो, ज़िंदगी क्या कह रही है, तो आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और आप अपनी खुद की कदर नहीं करते हो, खुद की हौसला अफजाई नहीं करते हो, देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर रहे हो, यानी धीरे धीरे मर रहे हो आप। तो ऐसा जीना भी क्या जीना है जिसमें ना सफ़र हो, ना पढ़ाई हो, ना खुद की इज़्ज़त हो, ना खुद की हौसला अफजाई हो। तो ये मरनी ऐसी ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे तहरीक देकर जियो उसको। जिस तरह आग शोलों के साथ भड़कती है, इस तरह ज़िंदगी हरकत के साथ मोहतरिक रहती है। अगर हरकत नहीं है तो उसमें बेहरकत ज़िंदगी मुर्दा कहलाती है। व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम यानी खुद एतमादी, खुददारी। जब आप अपनी खुददारी को मारते हो, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और जब आप दूसरों को भी मदद करने नहीं देते, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम धीरे धीरे मर रहे हो। जो आप में अल्लाह ताला ने खुद एतमादी दी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और जब दूसरे लोग आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, मदद करने आ रहे हैं, तो उनकी भी मदद नहीं लेते हो, तो आप मुर्दा जैसी ज़िंदगी जी रहे हो। यानी कुछ करना ही नहीं चाहते ज़िंदगी में, ना किसी की मदद करना चाहते हो और ना ही किसी की मदद लेना चाहते हो। ज़िंदगी तो एक दूसरे को साथ देने का नाम है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और ना इताअत के लिए कुछ कम नहीं तकर्रुब बिया। तो ये था पहला स्टैंजा। इस स्टैंजा में आपने देखे होंगे ना राइमिंग वर्ड्स है और ना राइमिंग स्कीम है। इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम, बहुत खूबसूरत पोएम है। यहाँ सेल्फ स्टीम की मानी होती है खुद एतमादी। हमने हमारी खुद एतमादी रखना चाहिए। हम कैसे रख सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर को जानकर, हमारे अच्छाइयों को जानकर, अपने आप पर फ़ख्र करते हुए, और अपनी सेल्फ स्टीम जो है दूसरों में मुनक्किस होना चाहिए। इस तरह से हम अपने खुद एतमादी की, खुददारी की भी हिफाजत कर सकते हैं। बल्कि हमको अपने आप को इस लायक बना देना चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें। इस तरह हमारी सेल्फ स्टीम कायम रहेगी, खुददारी कायम रहेगी। जहाँ दूसरों को अपनी मदद करने की ज़रूरत है उनको देंगे, जहाँ दूसरों से मदद करने की ज़रूरत है उनसे लेंगे। इस तरह से हम अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्टैंजा में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछ रहा हूँ, उनके जवाब ज़रूर भेजिएगा आप फतेह ग्रुप में। तो पहला सवाल है,
व्हाट थिंग्स कैन लीड टू स्लो डेथ? व्हाट थिंग्स कैन लीड टू स्लो डेथ? दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ स्टीम? ये दो सवाल मैंने आपको इस स्टैंजा में पूछा हूँ, आप ज़रूर इसको फतेह ग्रुप में पोस्ट कीजिए। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हो और रोज़ाना एक ही रास्ते पर चलते हो, यानी आपका सेम रूटीन रहता है, अगर आदतों के गुलाम बन जाते हो और एक ही रास्ते पर और हर रोज़ वैसी ही ज़िंदगी गुजारते हो जैसी गुजर रही है, तो आप धीरे धीरे मरना शुरू कर रहे हो। हमने आदतों के गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि आदतों को अपने गुलाम बनाना चाहिए। अच्छी आदतों के हम मालिक बनते हैं और बुरी आदतों के हम गुलाम बन जाते हैं। जैसा मैंने हदीस भी बयान किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, द वन हुज 2 days आर सेम इज इन लॉस और डेफिसिट, जिसके 2 दिन एक जैसे हो वो खसारे में है। तो ज़िंदगी में हमने अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से। हर आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए हमारा। ऐसे हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी ने बयान किया है, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, और अपना रूटीन नहीं बदलते हो, वही सुबह उठना, सोना, कुछ नहीं करना, ऐदीपन का शिकार होना, यही अगर चलता रहा तो आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप मुख्तलिफ रंगों के लिबास नहीं पहनते हो, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज हु यू डोंट नो, और जिनको तुम जानते नहीं उनसे बात नहीं करते हो, यानी ताल्लुकात नहीं बढ़ाते हो अपनी, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम धीरे धीरे मर रहे हो। इसमें शायर बता रहा है कि अच्छी आदतें बनाइए और अलग अलग रास्तों से अपने अपने मनाजिल को तय कीजिए और शाहाना ज़िंदगी गुजारिए। अच्छी आदतों के मालिक बनिए, बुरी आदतों को छोड़िए और रोज़ाना अपने आप को इल्म और अमल के लिहाज से अपडेट करते रहिए। इसमें मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट डज़ द पोएट एडवाइज अस इन दिस स्टैंजा? शायर हमें कौन कौन सी नसीहतें करता है इसमें, इस स्टैंजा में? इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप जज्बात को महसूस करना छोड़ देते हो, एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, और उनके अफरा तफरी वाले इमोशंस को महसूस करना छोड़ देते हो, किन लोगों के? दोज विच मेक योर आइज ग्लिसन, जिनकी वजह से आपकी आँखें चमक उठती है, यानी जिन्हें देखकर आपकी आंखें चमकती है, तो उनके जज्बातों को तुम नज़रअंदाज कर देते हो और तुम्हारा दिल ज़ोर से धड़कता है, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम धीरे धीरे मर रहे हो। तो ऐसे लोगों को तुम अवॉइड करना शुरू कर देते हो, जिनकी वजह से आपकी आंखें चमकती, जिनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है या आपके दिल में जिनके लिए मोहब्बत है, तो उनके जज्बातों को नज़रअंदाज कर देते हो अगर आप, और उनकी जज्बातों को महसूस करना छोड़ देते हो, अवॉइड करते हो उन्हें, और जिन्हें देखकर आपका दिल धड़कता है, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके आप धीरे धीरे मर रहे हो। उन्हें अपना बनाओ, अपनी शेयरिंग उनको दो, उनकी फीलिंग्स खुद लो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, और अगर दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते हो आप, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, जब अगर आप अपनी जॉब से मुतमईन नहीं हो और अपनी मोहब्बतों से मुतमईन नहीं हो, तो तुम बदलते नहीं अपनी लाइफ के तरीके को, जिसकी वजह से आप मुतमईन नहीं हो पा रहे अपनी जॉब से और अपने मोहब्बतों से। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, अगर तुम खतरा नहीं लेते गैर हकीकी तौर पर, क्या तुम महफूज हो? ज़िंदगी तो खतरात का नाम है, और उन्हीं ख़तरों से महफूज होकर ज़िंदगी गुजारी जाती है, उसी से ज़िंदगी दिलचस्प बनती है। और गैर यकीनी तौर पर क्या सेफ़ है, क्या महफूज है,
और क्या महफूज नहीं है। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, और अपने ख्वाब का ताकुब नहीं करते हो, यानी अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हो, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, और अपने आप को इजाज़त नहीं देते हो एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, एक बार भी ज़िंदगी में, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, अगर अपने आप को इजाज़त नहीं देते हो ज़िंदगी में कम से कम एक बार समझदार भरी नसीहत से दूर भागने की, तो ऐसी नसीहतें जो रिस्क के खतरा से हमें बाज रखती है, तो ऐसी नसीहतों से बचने एक बार भागने की ज़रूरत नहीं करते हो, तो रिस्क उठाना चाहिए ज़िंदगी में। रिस्क से ही लाइफ हमारी महफूज होती है और हम अपने गोल को, अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है नो रिस्क विदाउट रिस्क, उसे रिस्क नहीं मिलता जो जोखम नहीं उठाता है। ये सवालात इस तरह होंगे। What does the poet advise you in the last stanza? What is that makes life worth living? जिंदगी को अच्छी तरह गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये बताइए। इंशाल्लाह जल्दी आपको इस पोएम का इंग्लिश वर्कशॉप भी पेश किया जाएगा, तो इस पोएम को गौर से समझिए और फतेह ग्रुप में इन सवालों के जवाब दीजिए जो पूछे गए हैं, और इस पोएम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Wait till the next video. Inshallah, we will meet again. Thank you.